Welcome all of you. We were continuing our sessions of carbon compound. In the last class we were discussing कि हाँ अल्कोहल है तो OH होगा, कीटोन है तो CO होगा, और बेसिक नोमेनक्लेचर यहीं तक आता है आपके सिलेबस में. नो बीट ऑफ लाइक, है ना, कुछ लंबा नहीं आता है. वन थिंग आई वाज डिस्कसिंग, सिंपल ब्रांच अगर आता है तो उसको कैसे करते हैं, राइट? So today we will discuss somewhat left nomenclature portion which I was discussing in the last class. Then I will discuss directly how soap work. That is an interesting topic. Soap detergents कैसे work करते हैं in easy manner, ठीक है? So let us start. All of you welcome. So let me take this one. What is the name of this compound? Let me know. कोड मेरा वाला. Medans? Pentane. Pentane, exactly. And what is the name of this compound? Propane. Pentane. Pentane है ये? This one is pentane? Yes, sir. Yes. पक्का? Yes. Someone has told hexane, है ना? No इसे sir, निकाल दो. pentane. हाँ, it is pentane only. See, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. आपको पेन मेरे को उठाने का जरूरत नहीं पड़ा ना. It is straight only. These two are same thing. ठीक है ना? अभी आपको समझ जाना है. Both are same thing. ठीक है? But now, if I am doing nomenclature, I will write the name. This one is also pentane. That is normal pentane. Someone will write N-pentane, normal pentane, or you should write simply pentane. Both are same. This one also pentane. But if I will write like that, like this, 1 2 5. So what will be this name? 2-methyl-butane. 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 So how exactly you means answer? Tell me. किस तरह से thinking process चला? I know सभी को आता होगा, but we should discuss. First we count from the right side because वहाँ से ही सबसे कम नंबर मिलेगा substituent को. Right side, this one, right? Yes, sir. 1 2 3 4, right? Yes. 1 2 3 4. Then तो सेकंड कार्बन पे है कॉन्स्टिट्यूएंट, तो हम 2 लिखेंगे, और मेन कार्बन चेन में 4 कार्बन है तो इसलिए हुआ ब्यूटेन, और मतलब जो वो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है मिथाइल, तो बन गया मतलब 2 2 मिथाइल नंबर पे हमारा एक ब्रांच है. दिस वन इज ब्रांच, है ना, जो मेन चेन में नहीं आया. सो इट विल बी 2 एंड इट इज मीथ, 1 कार्बन. You know this thing. This one is which compound? Which compound it is? मीथेन. Methane. But इसी से अगर एक हाइड्रोजन अगर आप रिमूव कर दिए, then it will be मिथाइल. called methyl. This is methane. This is methane. That the group name is alkane, right? Alkane. But now this group name is what? Alkyl. Alkyl. This is alkyl, right? So that name is also methyl. Okay. So now this one is 2 methyl, and it is in the main chain there are 4 carbons, so it will be ब्यूटेन. ब्यूटेन. अब एक इंपॉर्टेंट बात, ठीक है ऑल ऑफ यू, इस फॉर्म को आइसोफॉर्म बोलते हैं. यू नो कॉमन नेम, राइट? हर का कॉमन नेम होता है ना, जैसे लाइक मेरा कॉमन नेम घर पे कुछ होगा, आप लोग का भी होगा. सो दिस वन हैज आल्सो अ कॉमन नेम, ठीक है ना, आप अगर अच्छे एग्जाम्स दे रहे हो. सो इन कॉमन नेम दिस कंपाउंड विल बी कॉल्ड व्हाट आई राइट? आइसोपेंटेन. ये देखिए, आप नोमेनक्लेचर कितना ही पढ़ो, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चंस ये पूछे जा सकते हैं आपसे. आइसोपेंटेन ये एक कॉमन नेम है. दिस इज नॉट आईयूपीएससी नेम, बट ये पूछ लेते हैं जब एक ब्रांच निकला हो ना. सो दैट कैटेगरी इज कम्ड अंडर आइसोपेंटेन, और यू कैन IUPAC name is 2-methyl-butane. This is common name. This one is IUPAC name. One more thing is here. एक चीज इंपॉर्टेंट है, बोल देना. I'm not like मैंने बहुत पॉइंट कवर नहीं करा, बट उतना जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मे भी आ सकता है, तो थोड़ा आइसोपेंटेन में बोल रहा हूँ. अदरवाइज नेक्स्ट लेट बी कार्बन, this carbon, this carbon, 3 carbon, 1 above, 1 below.
So this one is hydrogen. I'm not writing hydrogen. What is the name of this compound? 2,2 dimethyl propane. So what you are taking main chain कौन सा ले रहे हैं? वो 3 वाली जो बीच में है. आप Horizontal. main chain इसको भी ले सकते हैं, right? If you are taking this main chain, this one has 3 carbon. You want to take कृति, आप ये भी ले सकते हो. So you can take this one also as a main chain. This one, ठीक है, कोई भी लो, कोई problem नहीं है. And if you number, so this one is 1, this one is 2, this one is 3. So देखो, if you are taking this one as main chain, then both this one and this one is coming as branch. So both are at second carbon. So what will be the name? 2,2 dimethyl. dimethyl propane. dimethyl propane. 2,2. You have to write 2,2 because it is one is above, one is below. ठीक है, 2,2. Dimethyl. Dimethyl propane. Dimethyl, because there is 2, right? Dimethyl Propane. TH2 dimethyl, and in the Propane. main chain we have 3 carbon ना, so propane. ठीक है, किसी को Propane. प्रॉब्लम? अभी No, तक sir. यहाँ बेसिक, दिस वन इज द वेरी बेसिक, आपको ये जानना चाहिए. इतना जानते हो, इट इज इनफ. आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज इनफ. फाइन संयुक्ता. नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट, इसका भी एक कॉमन नेम है. यू शुड नो दिस थिंग. अगर आप कोई स्कॉलरशिप एग्जाम दे रहे हो ना, वहां पूछ सकता है आपसे. ठीक है, दिस हैज अ कॉमन नेम. कैन एनीवन नो? लेट मी नो. किसी को पता है इसका कॉमन नेम? व्हेन देयर इज लाइक 2 ब्रांचेस ना, एक अबव है एक बिलो है, देन दिस वन हैज ए स्पेशल नेम. जैसे दिस वन हैज आइसोपेंटेन. इसका किसी को पता है? एनीवन? एनीवन टेलिंग? Neopentane. नियोपेंटेन. एग्जैक्टली. इसको आप बस कॉपी पे लिख लो. दिस वन इज आइसोफॉर्म. जब एक ब्रांच निकलता है उसको आइसोफॉर्म बोलते हैं. एंड यू नो हियर 2 ब्रांचेस निकले हैं. वन इज दिस वन एंड वन इज दिस वन. सो दिस विल बी कॉल्ड नियोपेंटेन. पेंटेन. ठीक है, PENTANE. ऑल ऑफ यू. ठीक है ना. जब 2 ब्रांचेस होंगे, वन अप डाउन, देन इट विल बी कॉल्ड नियोफॉर्म. Neopentane. नियोफॉर्म. जितने कार्बन है सब काउंट कर लेना. दिस इज कॉमन नेम. उसका कॉमन नेम, IUPAC नेम नहीं है, और अभी नहीं आएगा. पैनिक नहीं लीजिए, आपके एग्जाम में नहीं आएगा. एंड वन मोर थिंग इज आइसोफॉर्म, जब एक ब्रांच हो. नाउ वी शुड स्टार्ट विद सोप, है ना. वी यूज टू बाथ डेली, बट सोप कैसे काम करता है किसी को पता है? एनीवन? हाउ सोप वर्क्स? Missiles. मिसल्स. ओके. एनीवन अदर? कोई बच्चे, अदर बच्चे नहीं जवाब दे रहे हैं. तो पूरा एक्सप्लेन करो. The hydrophilic and hydrophobic ends of soap. Okay. Okay, more answers. Tanvi, then Isha Jain, then other answer. बच्चे participate करो. What you know more? एक हाइड्रोकार्बन चेन होती है जो Others को बोलने दीजिए. Others बच्चे बैठे हुए हैं. Let other also speak. बताइए बच्चा, participate करिए. How soap detergent work? बड़ी बात नहीं है. Anyone know? बताइए. थोड़ा आइडिया होना चाहिए. So much silence. क्या बात है? So now start. Sir, it has presence of OH ions in it. OH ions. बोलिए शौरवी. Sir, OH ions के होने की वजह से उनमें cleaning properties हैं. ठीक है, और अदर बच्चे और बोलिए. ठीक है, we should start. ठीक है ना. हाँ बोलिए. Sir, I will the make it carbon easy. chain आप dissolves पहले in पाँच- oil, ओमकार बोलिए. in oil and then. Sir, the carbon chain dissolves in oil and the ionic and dissolves in water. ठीक है. So now we should start, right? चलो स्टार्ट करते हैं ना. एक ऑल ऑफ यू बी रिलैक्स. अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता ना, बी रिलैक्स. ठीक है ना. अभी समझा देते हैं. ठीक है. सो फर्स्ट, व्हाट इज सोप? सोप है क्या? वाह, एग्जैक्टली, व्हाट इज सोप? ठीक है. ऑल ऑफ यू नो कार्बोक्सिलिक एसिड. Yes, Yes, sir. कार्बन Yes, sir. डबल बॉन्ड O. This one is OH, right? H.
एंड दिस वन इज कार्बन, ठीक है। इसका नेम क्या है? इफ आई एम शोइंग दिस वन, व्हाट इज इट्स नेम? मिथेनॉइक एसिड। Ethanoic acid. इथेनोइक बचा, दो कार्बन। Ethanoic acid. इथेनॉइक। धोखा किया। Ethanoic acid. Ethanoic acid, ठीक है। So now come to the point. And what is the common name of ethanoic acid? Formic Acetic acid. Now fine. What is shown? क्या है? तो क्या बचा? All of you silent हो सर, साइलेंट कर लीजिएगा अभी 5 minutes, अभी हमको सुनिए, ठीक है ना? All of you focus now. Now this one is carboxylic acid and this one is carbon chain. This carbon chain can continue. This carbon, 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 long. You know carbon can form long chain, ठीक है ना ऋत्विक? कार्बन लॉन्ग चेन बना सकता है। सो सोप में, इन केस ऑफ सोप, यू नो का C17 कार्बन में कम, लाइक इतना कंटिन्यू करते हैं अप टू 17 कार्बन आर इन स्ट्रेट चेन। गॉट माय पॉइंट? दिस वन इज हाउ मच कार्बन डॉट डॉट, आई एम मेकिंग इट डॉट डॉट, मेनी कार्बन आर देयर इन बिटवीन, ठीक है ना? कार्बन डॉट डॉट डॉट, देयर आर मेनी कार्बन। कितने कार्बन? 17। 17 carbon chain, and in the last, you know, all of you know carbon compounds covalent bond होते हैं, sharing से होता है ना? This portion, Yes, this sir. bond is formed by what? This bond is formed by sharing. This bond is, बच्चा भी जोकिंग कर रहे, लेकिन जोकिंग करते करते बहुत सीरियस हो जाएगा, ठीक है ना? And you will get it easily, ठीक है ना? ध्यान से सुनो। This part is formed by sharing, कार्बन शेयरिंग करता है, so यहाँ कोई आयंस नहीं बनेगा। They are non-polar. They are non-polar. अब non-polar क्या बोला अभी समझ में आएगा। This part OH part. अब करना क्या है, इस H को ना रिमूव कर दो। यहाँ से हम H को रिमूव कर देंगे। Hydrogen has a valency of 1, right? So I'm taking another compound which is actually Na. Sodium has also valency of 1, so it will be feasible. But you know, sodium easily can donate his electron. Sodium क्या करता है? 2,8,1. It will easily lose its electron to oxygen. तो यहाँ जो bond है ना, this bond is ionic bond. समझ में आ रहा है? This bond Yes, is sir. formed by loss or gain of electron. So O minus and Na plus. You know, एक family में ना, for suppose there is some in your family or someone family, कोई एक, सबको नेचर नॉर्मल है, बट एक दो है जो थोड़ा कुछ ना कुछ चलते रहता है उनके दिमाग में। तो ये जो ONA है ना, ये वही बदमाश बच्चे लोग हैं, ठीक है? these are the बदमाश बच्चे। they are polar, they are existing में ना, कि इलेक्ट्रॉन लॉस किया है इसने, इलेक्ट्रॉन गेन किया है, this one is plus, this one is minus, this thing is called polar. that is formed when ionic bond is there, है ना? जब ionic bond होता है ना, O minus Na के बीच में ionic bond है। बट इसी फैमिली में ये जो लंबा कार्बन चेन है, ये क्या है? इसमें कोई प्लस माइनस नहीं है, दे आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग, राइट? सो कार्बन का जो मेन Covalent चेन bond. है, कार्बन का जो मेन चेन है, अर्शी ऑल ऑफ यू, कार्बन का जो मेन चेन है, जो लंबा C17 है अप टू CO, ठीक है ना? C डबल बॉन्ड O, वो सब के सब कोवेलेंट बॉन्डेड है। दे आर नॉन पोलर, उनके पास पॉजिटिव नेगेटिव कोई मतलब नहीं। बट बदमाश बच्चा, इन द लास्ट यू कैन सी हियर O माइनस Na प्लस, जो कि पोलर है। अब यहां से स्टोरी क्या है? Now, two things we have to make in mind. You have to repeat with myself. Polar likes polar. Tell. Polar likes polar. Polar likes polar. ठीक है? Polar likes polar. Polar likes polar. And another one is non-polar likes non-polar. Non-polar likes non-polar. ठीक है ना? आपको आपके जैसा नेचर ही सूट करेगा, है ना? अब मान लो ना, कोई बच्चा बहुत शांत रहता है और उसको हल्ला करने वाला बच्चा, दूर हटो, राइट? सो पोलर लाइक्स पोलर, नॉन पोलर लाइक्स पोलर। अब बोलना क्या चाहते, राइट? दिस पोर्शन विच इज पोलर, दिस वन बच्चा, ऑल ऑफ यू हियर मी वेरी सीरियसली, है ना? यहीं से सारा स्टोरी अब बनना स्टार्ट होगा। दिस पोर्शन विच इज पोलर, इसको पोलर ही पसंद आएगा, मतलब ऐसे कंपाउंड्स पसंद आएंगे, वहां ये रहना चाहेगा जहां पोलर नेचर हो, जहां लॉस और गेन से बना हो। लाइक यू नो वाटर, H2O, ऑल ऑफ यू नो H2O, ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो Yes. हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करता है। तो वाटर इज समवट पोलर। वाटर किस नेचर का है? Polar. पोलर नेचर का है। दिस पोलर, है ना, दिस वाटर विल बी लविंग दिस पार्ट, दिस पोलर पार्ट।
बट वाटर विल हेट दिस पार्ट, दिस वन। तन्वी समझ में आ रहा है? वाटर विल हेट दिस पार्ट, लॉन्ग चेन पार्ट। क्यों? Yes, sir. Because it is non-polar. बिकॉज इट इज नॉन पोलर। नॉन पोलर को नॉन पोलर ही पसंद आएगा। अब नॉन पोलर मीन्स कार्बन चेन। यू नो ऑयल, आप जानते हो ना ऑयल, घर में यूज है सरसों तेल, यू नो मस्टर्ड ऑयल, मेनी थिंग्स आर देयर इन द Yes, sir. right? So these oils are what? These oils are carbon compounds, you know, alkanes, alkenes, alkynes, ये सब oil है, oils, ठीक है ना? और ये जो oil है, olefins, बहुत सारी बातें हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे 11th में। So ये जो oils होते हैं, वो सब के सब किस नेचर के हैं? कार्बन कंपाउंड है। अब पॉइंट क्या है? पॉइंट क्या है? फॉर सपोज यू टेक अ क्लॉथ, दिस वन इज माई बकेट, दिस वन इज अ स्पेशल माई बकेट, ओके, रॉन्ग डायग्राम जो भी हो, दिस वन इज क्लॉथ, ठीक है, ये क्लॉथ है, ठीक है, ओके फाइन। सो दिस वन इज अ क्लॉथ एंड फॉर सपोज ना, ऑल ऑफ यू बी फोकस, यहाँ ना कपड़े में इन द क्लॉथ यहाँ ये डर्ट लगा है, दिस वन इज डर्ट, ये क्या आपका डर्ट है, गंदगी है इन द क्लॉथ, ठीक है। एंड फॉर द सेक ऑफ आवर कन्वीनियंस दिस डर्ट इज ऑयली इन नेचर। कैसा नेचर का है? ऑयली। Oily. Oily. ठीक है बच्चा, ऑल Oily. ऑफ यू जिसको नहीं समझ में आता है ध्यान देना, सबको समझ में आएगा, ठीक है ना? आई एम टेकिंग दैट गारंटी, Oily. ध्यान नहीं आया तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना? सो नाउ आई एम टेकिंग अ क्लॉथ, यहाँ पर एक डर्ट है, दिस इज ऑयली इन नेचर, राइट? और आप कपड़े को क्या करते हो? व्हाट यू डू? कपड़े को Wash. साफ करना है तो क्या डालते हो उसमें? Wash. वॉश करने के लिए क्या Soap, चाहिए? Soap, detergent. detergent. हाँ, सोप डिटर्जेंट चाहिए, सबसे पहले उसको वाटर में तो चाहिए ना, वाटर तो चाहिए ना, राइट? दिस ब्लू इज वाटर, ठीक है, Yes, sir. दिस ब्लू आई एम डिनोटिंग एज वाटर। नाउ व्हाट यू हैव डन, आप सोप डिटर्जेंट लेते हो, ठीक है, अभी होगा क्या? दिस वन इज कार्बन 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 कार्बन, लॉन्ग डॉट 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 17 कार्बन्स, लास्ट में डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या है? O Na. ONA. Minus. Na. So it will be called long chain of carboxylic Acid. acid। और एक्चुअली क्या है ना, एसिड का रिएक्शन हुआ है किससे? बेस से। फॉर सपोज यू टेक अ एसिड, आप ले लो, फॉर सपोज एसिड यू टेक HCl प्लस NaOH, ठीक है, तो रिएक्शंस में क्या होता है? एसिड बेस के रिएक्शन में क्या बनता है? सॉल्ट, Salt plus Salt water. plus पता है ना? water. Salt. तो ये आपका पूरा एक कार्बोक्सिलिक एसिड था, राइट? यहाँ पर ये H है ना, HCl का जो H है ना, वो H से किससे कंबाइन कर जाता है? OH से H2O वो बनाता से है। कंबाइन कर जाता है। OH. जबकि ये Na जो है वो OH. Cl से कंबाइन करता है, तो ये Na जो Cl से कंबाइन करता है तो क्या बनता है? NaCl विच इज सॉल्ट। उसी तरह से ये Yes, जो आपका sir. कार्बोक्सिलिक एसिड था वो NaOH से किसी कोई होगा NaOH, आई डोंट कंसीडर, वो Na यहाँ आकर के लग गया है, इट मींस इट इज अ सॉल्ट। क्या बोलोगे? सॉल्ट, लॉन्ग चेन ऑफ Salt. सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना? दिस इज सोप, दिस इज डिटर्जेंट। डिटर्जेंट में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, अभी सोप पर आते हैं। सो सोप में क्या है? लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और क्या आ जाता है लास्ट में? Na, इसलिए इसमें हम सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना? कमिंग टू द पॉइंट, ये जो कार्बन कार्बन लॉन्ग चेन है इसको हम ऐसे डिनोट कर रहे हैं, दिस वन, इस तरह से डिनोट करते हैं। दिस कार्बन इज डिनोटेड हेयर, दिस कार्बन इज डिनोटेड हेयर, दिस कार्बन इज डिनोटेड हेयर। मतलब अब कार्बन कार्बन नहीं लिखेंगे, इस तरह से ऐसे कर देंगे। बात समझ में आई क्या है? ये पोर्शन, Yes. sir. एंड नाउ ये Yes, जो बदमाशी वाला पोर्शन है ना, ये बदमाश बच्चे कहाँ है? हाँ, दिस पोर्शन, दिस वन O माइनस Na प्लस, जो कि पोलर नेचर का है उसको इस तरह से दिखाएंगे। ये वाला पोर्शन यहाँ है, और एंड ये जो पोर्शन है आपको ना, ये दिख रहा है ना, वो इस तरह से दिखाएंगे, ठीक है? सो नाउ आई विल नॉट ड्रॉ दिस डायग्राम, आई विल ड्रॉ दिस डायग्राम, ठीक है? सबको दिमाग में गया, ठीक है? Yes, sir. पोर्शन इज दिस, ये जो पोर्शन है ये कार्बन है, दिस इज पोलर और नॉन पोलर? Non-polar. non-polar. साइन एकदम Non-polar. नॉन पोलर। एंड दिस पोर्शन, ये जो एंड में है, ये कैसा पोर्शन है? Polar. 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 पोलर। एंड नाउ यू हैव नोटेड कि पोलर लाइक्स पोलर एंड नॉन पोलर लाइक्स नॉन पोलर, ठीक? कंटिन्यू, Yes, Yes. sir. Yes. ठीक है? नाउ जस्ट अ सेकेंड, नाउ माय नेक्स्ट पॉइंट विल बी,
So now what will happen when I will take my bucket and put the soap or detergent here? ऐसे ये molecules आ गए, ठीक है, बहुत सारे molecules, you know, बहुत सारी ये molecules है, हमने किस में डाल दिया है? Where? बॉटल में Water में, ठीक है, we have taken it in the water, ठीक है, and here is a किसका like take a dirty cloth, और इस dirt में, यहाँ dirt कहाँ है? Dirt यहाँ, for suppose this one is dirt. Dirt का nature कैसा है? Oily. कैसा nature है? Oily. तो ये जो dirt है जो कि oily nature है, वो polar है या non polar है? So non-polar. Very Polar. clear कि जो आप oil ले रहे हो, oils are alkanes, alkenes, alkynes, ये सब carbon compound है, they are non-polar. Okay, fine. So now Yes. be relaxed, बहुत difficult नहीं होगा, बहुत difficult नहीं होगा. So ये जो oily portion है, वो इस soap या detergent के किस portion को love करेगा? Carbon chain. ये तो कार्बन carbon चेन, chain. यानी अब अगर हम इस डॉट को थोड़ा बड़ा बनाते हैं, दिस वन इज द मेन वाइली डॉट, ठीक है, दिस इज द मेन वाइल्ड डॉट, ठीक है, इसको बड़ा कर दिया. सो ये जो आप सोप मॉलिक्यूल लिए हो, इस सोप मॉलिक्यूल का जो थ्रेड लाइक कार्बन नेचर है ना, ये पोर्शन इसके इनसाइड चला जाएगा. व्हाई? बिकॉज इट इज नॉन पोलर, और नॉन पोलर को नॉन पोलर पसंद आता है. दे विल हेट वाटर, वाटर से उनको नफरत होगा, राइट? यस Yes, sir. बात समझ में आ रहा है? और यहाँ पर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सोप और डिटर्जेंट मॉलिक्यूल्स है. सो उनका जितना भी कार्बन चेन होगा ना, वो क्या ढूंढ रहा होगा, कहाँ हमको वाटर के बीच में कोई वाल दिख जाए. दे विल लाइक थिंक ना कि नहीं वो वाटर में है, लेकिन उनको वाटर पसंद नहीं है, राइट ना. वो कार्बन चेन जो है ना लॉन्ग, उनको वाटर पसंद ही नहीं है. वो कहाँ जाना चाहेंगे? कहीं से गलती से भी डर्ट मिल जाए, वाइल मिल जाए, वो वहां इंटर कर जाएंगे, क्योंकि उनको वाटर पसंद ही नहीं है. बात समझ में आया? एंड नेक्स्ट पॉइंट इज लाइक, जब उनको वाटर पसंद नहीं आएगा तो ये पोर्शन तो अंदर चला जाएगा, बट लास्ट पोर्शन जो कि आयनिक कंपाउंड था, दैट ONA, उसको तो वाटर पसंद है, राइट? वो वाइल के अंदर उसके साथ जाना चाहेगा? नो No, No, sir. sir. I will No, not go. sir. I will not go inside this oil. So this portion which is long chain, इसीलिए अब कहा जाएगा ना, इसी में अब आप टेक्निकल वर्ड सुनने को, हाइड्रोफोबिक, क्या हाइड्रोफिलिक, होता क्यों है वो हम आपको समझा दिए. दिस पोर्शन इज हाइड्रोफोबिक. व्हाई? बिकॉज इट इज एक्चुअली कार्बन कंपाउंड जो कि नॉन पोलर है. तो इट विल नॉट लव वाटर, बिकॉज वाटर जो है वो पोलर नेचर का होता है. इट इज सो ये पसंद करेगा वाइल्स में जाना. बट इसी का पोर्शन, ये बोले ना एक फैमिली का ही ये पार्ट है, दिस वन, but this will not like to be in that while, because while is non-polar. This portion will be outside of this while. क्यों? क्योंकि ये क्लॉथ है कहाँ? Water. पानी में. वाटर में. सो उसको भी, मतलब अब है ना कि आप नाराज हो गए तो मम्मी पापा को मनाना पड़ेगा, उनको उनका भी बात रखना पड़ेगा, ठीक है. सो दोनों बातें वहां पूरा हो गई. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट this portion will go inside the vial, and this portion will be out of this vial, right? So now what will happen? For suppose this one is the dirt, and this one is the carbon chain. Last part is hydrophilic. This portion is water loving, है ना, ये water को love करेगा, पसंद करेगा, right? Because this is ionic in nature. So this portion will be called hydrophilic. ठीक है, I explain you क्यों है ऐसा, ठीक है ना, हाइड्रोफिलिक. दिस पोर्शन विल बी कॉल्ड हाइड्रोफोबिक. Hydrophobic. Hydrophobic. ठीक है ना. सो दैट्स व्हाई अब क्या होगा, अगर ऐसा नेचर है तो आप देखो थाउजेंड्स सोप मॉलिक्यूल्स होंगे, डिटर्जेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, एंड दैट दे विल गो इनसाइड द, ये इस Dirt. पैटर्न में अरेंज होना चालू होंगे, राइट? दिस इज ऑब्वियस, ऐसा होगा, ठीक है. अभी का समझ में आया ये चीज, ठीक है. नाउ दिस होल क्लस्टर इज कॉल्ड, मिसल्स. क्या कहते हैं? Micelles. मिसेल्स, ठीक है ना. Mr. बस यही मेन पॉइंट था यहाँ का, ठीक है, जो आपको सीखने को मिला, ठीक है ना.
ओके फाइन। Yes. तो अब इसको क्या करो, अब Yes. देखो डिटर्जेंट जो होता है ना वो हार्ड वाटर में वर्क कर जाता है। क्वेश्चन आता है हार्ड वाटर क्या होता है? जिसमें सॉल्ट्स घुले हुए होते हैं। Which किस चीज के contain salt? potassium. Which contains salt. विच सॉल्ट, क्वेश्चन तो ये आता है ना, विच सॉल्ट? मैग्नीशियम, Potassium. कैल्शियम सॉल्ट। मैग्नीशियम। एंड अगर आपके वाटर में आपके वाटर में याद कर लीजिए, आएगा क्वेश्चन, आपके वाटर में अगर मैग्नीशियम एंड कैल्शियम का सॉल्ट है, Calcium. इट विल बी हार्ड वाटर। व्हाट इज हार्ड वाटर? जहाँ सोप्स में लेदर नहीं बनेंगे, ठीक है ना, लाइक बैंगलोर वाटर लाइक, है ना, थोड़ा हार्ड वाटर टाइप है, ठीक है। सो क्वेश्चन ये आते हैं, और क्वेश्चन क्या आते हैं, व्हाट इज डिटर्जेंट? डिटर्जेंट, राइट द कोड ऑफ टुडे। सोडियम आज का सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड। हाँ, वहां पे सल्फोनिक एसिड आ जाएगा, ठीक है ना, SO3, ये सब लास्ट में जो हम आपको ये बोल रहे हैं ना, आप बुक पढ़िएगा, एक एक चीज आपको समझ में आएगा। यहाँ जो आप Na लिख रहे हो ना, वहां पर SO3 ये सब आना स्टार्ट हो जाएगा, सल्फोनिक एसिड, ठीक है। यस सर। राइट द कोड ऑफ टुडे, आई विल टारगेट कार्बन, आई विल टारगेट कैपिटल C। राइट द कोड ऑफ टुडे, आई विल टारगेट कैपिटल C। अभी सभी को मैसेज कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम गार्जियन से आपका मैसेज देख के बात कर रहे होते कि आप क्लास में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आई विल टारगेट कैपिटल C, दैट इज कार्बन कंपाउंड, ठीक है ना। और देखो अब इतना यहाँ तक अगर कुछ कवर होना है, इट्स ओन के, ठीक है ना, आपका जो सिलेबस उसके हिसाब से आप बहुत अच्छे हो, ठीक है ना। वो लॉन्ग चेन और इतना इतना डबल ट्रिपल बॉन्ड एक साथ आ जाएगा, वो अभी आपका सिलेबस नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आप वहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ मैसेज नहीं करना है, लाइक अपने मेंटर टीचर, आप अदर मेंटर टीचर्स हैं हम लोग, तो आपको मैम को मैसेज कर देना है, ठीक है ना। फाइन गाइज, आज आपका स्टैटिक्स का सेकंड क्लास है। आई विल बी कवरिंग अप स्टैटिक्स, ठीक है ना, और डायरेक्टली स्टैटिक्स को इस तरह से समझाएंगे कि बेसिक भी कवर कर लें और डायरेक्ट एग्जाम्स के क्वेश्चन को भी डायरेक्ट कल से कनेक्ट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कल भी आइएगा, मिस नहीं करना सेशंस को, ठीक है ना। कहीं भी है, अपना ट्रेन में भी है ना, कोशिश Yes, करें session में भी। sir. हाँ तन्वी बोलिए, ऑल ऑफ यू ज्वाइन योर सेशंस ज्वाइन। सर एक्चुअली आपने जो मैथ्स का वर्कशीट दिया है ना, वो ओपन नहीं हो रहा है मेरे यहाँ पर। विच वर्कशीट बच्चा? ग्रुप पे भेजा है ना मैथ्स का। वो तो PDF है ना, हमने ग्रुप में जो डाला है। नहीं PDF नहीं है उसमें। ओपन नहीं हो रहा है। हमको भेजिएगा, अभी भेजिए। भेजा है मैंने सर, आई हैव मैसेज यू। ठीक है आस्था, हम देख लेते हैं। ठीक है, अब देख करके कॉल भी करते हैं। तेजस्विनी भी बोल रहे हैं ना? यस ठीक है, हम देखते हैं। ओके ठीक है बच्चा, अभी सेशन ज्वाइन करिए, फिर बात करते हैं। आइएगा सेशंस में, नेक्स्ट में भी आइएगा, मिस नहीं करना है सेशंस को। मेरा भी ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है मान लेते हैं। ओके सर, बाय गाइस, कीप स्टडीइंग। बाय सर। बाय ऑल ऑफ यू।